Hello students, I am Neeraj Kumar. Your course is structured for BJMC. Today I am going to talk about artificial intelligence and its implications on different aspects of life. Whether it is journalism, whether it is trade and customs and all these things, it's going to impact every way of life in near future, and it has already started impacting our life. So for this, we have with us an expert in this field, Mr. Manasvi Srivastav, and let me brief you about him. He is an engineer and former bureaucrat and was associated with Microsoft and KPMG. He did his graduation in chemical engineering from IIT Kanpur. He was selected in Indian Revenue Service in 1992 and served the government of India till 2006. While in service, he led the development of e-governance system called Automation of Central Excise and Service Tax, ACES, which automated the filing and scrutiny of central excise and service tax returns. He resigned from the service in 2006 and joined Microsoft Corporation. And as a part of the global trade team of Microsoft Corporation, Manasvi Srivastav built a business case for using artificial intelligence for international trade and customs processes. He has filed a provisional patent in October 2019 for an artificial intelligence based tool for HSN based customs clarification and rulings. Till recently, he was partner international trade and customs with KPMG. He is a regular contributor to leading Indian newspapers and news sites like Economic Times, Business Standard, Financial Express, and CNBC, and TV18, and many more. So, welcome, Mr. Manasvi Srivastav, to Shulli University of Distance and Online Learning Education. I Thank you welcome very you. much, sir. My pleasure to be here. Okay. Thank you. And so my first question to you is, as you know, today, in last 1.5 years, or even much before that, people were talking about artificial intelligence. But in last 2 months, or let's say 6 months, after this Chat GPT came, everybody has started talking about there so many things which are coming out that you can improve your voice, you can add your different accent to your voices, you can write different things, you can manage different things. So what is so special about recent advances in artificial intelligence? If you could elaborate on this. Great question. Now, AI, as I have been observing for the past 2 decades, we saw it go through different phases. And in the initial phase, I would say, when I say initial phase, I would say just a few years back, because the development has been so fast that what was current has suddenly become medieval and has become ancient also. Yeah, that's true. Yeah. So initially, what AI used to do was it would take in न्यूमेरिकल इनपुट्स और स्टेटिस्टिकल इनपुट्स अगर हम बोलें तो अंकीय और सांख्यिकीय डेटा लेकर उसके बाद फिर उसका उसी तरह का आउटपुट देता था। हमने बोला कि ठीक है, बहुत सारा स्टेटिस्टिकल डेटा दे दिया सिस्टम में और उसके बाद फिर बोला कि आप प्रेडिक्शन करो कि जिन लोग के ऐसे टेम्परेचर है, ऐसा वेट है, ऐसा बॉडी मास इंडेक्स है और कई पैरामीटर्स दे दिए, ये बताओ कि इनकी हॉस्पिटल विजिट्स कितनी होंगी अगले साल। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके लोग, और उसके फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस हो रहे थे। सबसे पहले मेडिकल फील्ड में हुए, then various other fields like economics and predictions and finance and such things began to happen. What is special is the recent advancement is what is called natural language processing, NLP जिसको बोलते हैं। NLP भी ऐसा नहीं कि पिछले 3 या 6 महीने में विकसित हुई है, ये भी मैं इस पे काम करता रहा हूँ समझ लीजिए सन 2014 से। और उस पीरियड में भी मैंने देखा कि हर 1-1.5 साल के बाद आपने जो सीखा है वो बेकार रहता है। So the progress has been so fast. Now, in the past few years, certain technologies which were propagated by, I would say, very much by Google, because many of the things were evolved by them, but then they became common knowledge. The technology of what is called transformers and generative models and those kind of things, which have come together to give advancements in NLP, जिसकी वजह से आज की तारीख में आप नेचुरल लैंग्वेज का इनपुट देते हैं और नेचुरल लैंग्वेज का आउटपुट लेते हैं, एंड इट tries to give something which is close to a human output.
Okay. That is the main, I would say, the biggest advancement that has happened, which has got everyone to talk about ChatGPT. क्रंचिंग नंबर्स करके अगर वो कुछ देता था तो स्पेशलिस्ट के लिए कंसर्न होती थी, स्पेशलिस्ट उसमें इंटरेस्टेड होते थे। मगर जब वो ह्यूमन की तरह इंटरैक्ट करने लगा, एंड इट कैन राइट पैराग्राफ्स, हम सभी को पता है कि पीपल हैव बीन ट्राइंग टू राइट पोएम्स, दे हैव बीन ट्राइंग टू राइट प्लेज और पैराग्राफ्स और जर्नलिस्टिक कंटेंट। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि suddenly public's interest and public's receptivity has increased. That has raised a lot of issues. आपको पता होगा बहुत सारे सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट ने इस पे एक चिट्ठी भी लिखी है कि एआई के डेवलपमेंट को रोका जाए जब तक कि हम इसकी दिशा पर नियंत्रण न पा पाए, क्योंकि हमको पता नहीं कि वो क्या कर सकता है, डिसइंफॉर्मेशन फैला सकता है, क्या कर सकता है। तो ये एक बड़ी स्पेशल चीज है एनएलपी में, जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हुए जो पहले नहीं हो पाते थे। और एक बहुत खास बात इसमें यह है कि कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा लेख निकला था युवाल नोआ हरारी का, जिसमें उसने कहा कि गौर करने की बात यह है कि हमारी सारी ह्यूमंस की जितनी इंटेलिजेंस है और जो नॉलेज है वो कैसे आई, वो भाषा के माध्यम से आई है। पहले भाषा विकसित हुई, फिर ह्यूमंस ने आपस में कोलैबोरेट किया, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाया, जो आपको समझ में आया आपने मुझे समझाया। फिर इवन जैसे साइंस और मैथ की चीजें हैं, ये भी हमने भाषा के ही माध्यम से समझी और लिखी और दूसरों को समझाई। तो इसका मतलब कि लैंग्वेज इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। और चैट जीपीटी और इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा लैंग्वेज का डेटा डाल दिया गया और उसके बाद दे वर एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई ठीक है, अगर ये चीज बोली जाए तो उसके बाद क्या बोला जाएगा, और अगर ये चीज कही जा रही है तो उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी कैपेबिलिटीज उसमें डेवलप हो गई। आज की तारीख में आप चाहें तो चैट जीपीटी से एक मैथ का सवाल भी सॉल्व करा सकते हैं। ये बात हो रही है कि जो मेरी टेस्टिंग है उसमें मैंने देखा कि मैथ में भी वो काफी कच्चा है। अच्छा मतलब वो एक आम इंसान की तरह ही है, जिसे कहना चाहिए एक आम स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैथ्स में बहुत कम लोग पक्के होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी बात सही है, बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा आपके जो एक्सपर्टीज़ है, मैं सवालों को थोड़ा सा उस तरफ ले जाना चाहूँगा कि जो आपने, चूँकि कस्टम्स एंड एक्साइज ऑफिसर है, आप 14 साल तक आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अपनी सेवाएं दी, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में आप उससे जुड़े हुए, केपीएमजी में आप इसी, तो ये किस तरीके से वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, फिनांस एंड मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बात भी सही है कि हर फील्ड को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि आपने सुना होगा ऑटोनोमस ड्राइविंग, वो भी एक फील्ड है जो इम्पैक्ट हो रही है। मगर बिल्कुल जो फील्ड मुझसे सबसे करीब है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इस दिशा में काम भी करने की कोशिश की है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड और थोड़ा सा उससे रिलेटेड है फाइनेंस एंड एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। अब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेड गवर्नेंस, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गोज क्रॉस द बॉर्डर्स, तो हर आदमी को फाइल करने पड़ते हैं डिक्लेरेशंस। उस डिक्लेरेशन में आपको अपने प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन बताना होता है, उसका वैल्यूएशन बताना होता है, उसके हिसाब से उस पर ड्यूटीज लगती हैं या उसको अलाउ किया जाता है इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना, प्रोहिबिशन लगता है, रेस्ट्रिक्शन लगता है। नाउ आज की तारीख में आप देखिए जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स हो गया है, the amount of goods crossing borders is huge, and not only that, the type of goods which are crossing borders is immense. एक जमाने में क्या होता था कि एक इंपोर्टर होता था, वो 5-6 चीजों का डिक्लेरेशन देता था, एक कस्टम्स ऑफिसर उसको चेक करता था और उसको कहता था ठीक है पास हो गया। आज की तारीख में अगर एक कंपनी को हम देखें, किसी बड़ी आईटी कंपनी को, तो उसके पास 15,000 प्रोडक्ट्स, 20,000 प्रोडक्ट्स। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन अगर कोई करने बैठ गया, सपोजिंग एक कस्टम्स ऑफिसर के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिसमें 1,000 प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना, उसको उस चीज को क्लियर करना 10 मिनट में या आधे घंटे में, 1,000 प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन वो ह्यूमनली कर ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि पिछले कुछ सालों से, क्योंकि बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स हो गए थे और बिजनेस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, एक सिस्टम इवॉल्व हुआ था जिसको बोलते थे रिस्क असेसमेंट। उसमें ये होता था कि ठीक है हमारे पास 10,000 कार्गो आ रहा है, हम 10,000 में से 200 देखेंगे सिर्फ उस, और उसके पीछे कोई हम प्रणाली अपनाएंगे जिसमें हमको ये पता चले कि ये रिस्की कार्गो है, वो कुछ उसमें पैरामीटर्स डाल देंगे और सिर्फ उसी को हम ध्यान से देंगे। तो न पूरी तरह से चेकिंग हो पा रही थी, न पूरी तरह से कोई भी बिजनेसेस जो थे वो अपने इस प्रोसेस को कंट्रोल कर पा रहे। अब एआई से एक ये पॉसिबिलिटी उठी है कि
एआई को तो उतना वक्त लगेगा नहीं, है ना, जितना इंसान को क्लासिफाई करने में एक एक चीज को आधा घंटा 1-1.5 घंटा लग रहा था, वो तो उसको आधे सेकंड में कर लेगा. So because of that, what was not being done earlier can now be done. And that is a very important advancement in the field of trade. इसका दूसरा फ्लिप साइड ये भी है कि आज अभी तक इस चीज को एक्सपर्ट्स मैनेज किया करते थे. जैसे जहां पे मैं काम करता था इससे पहले एक बिग 4 फर्म थी KPMG, और उससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था. वहां पे भी हमारे पास एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे जो इस तरह की चीजें, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो दूसरे देशों में ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया से हुआ, इंडिया का, दुबई से हुआ, UAE से हुआ रादर, तो उन सब में भी कुछ कुछ कंसेशंस होते हैं. ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती, डिटरमिन करनी पड़ती. और because of the complexity and the volume, now it will be possible to be done, but some of the experts may probably lose their jobs. So that is a distinct possibility. जैसा कि अगर हम देखें पूरे AI को के एवोल्यूशन को, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपने देखा कि जॉब्स का नेचर चेंज है ना. और मगर AI में एक ये पॉसिबिलिटी आ गई है कि वो apart from blue collar jobs, even the jobs which need application of mind, उसको भी वो impact कर सकता है, and it can take away those jobs as well. So that's a possibility, but we'll talk about that later. As of now, so on one field, which is called international trade, I see that there can be a good beneficial impact. दूसरा फील्ड है फाइनेंस, और इसमें एक मजेदार वाकया ये है कि करीब 8 साल पहले करीब तो एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स जिनका काम होता है फोरकास्ट करना, आपको पता होगा कोई भी बड़ी बिजनेस फाइनेंस फोरकास्टिंग को बहुत ध्यान से लेती कि हमको कितने कस्टमर्स मिलेंगे, कितना बिजनेस आएगा. तो उसमें फिर हम लोग ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम था AI का जिसको यूज करके उस वर्कशॉप में समझाया जा रहा था कैसे किया जाए. जब वो वर्कशॉप खत्म हुई तो मैं गया इंस्ट्रक्टर के पास, मैंने कहा भाई आपकी ये जो बताया आपने एल्गोरिथम, ये तो कुछ टाइम में इतना परफेक्ट हो जाएगा, जो आपने फोरकास्टिंग के लिए इतने फाइनेंस प्रोफेशनल्स रखे हैं जिनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको निकाल सकते हो आप बड़े आराम. अब वो उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्होंने कहा कि भाई यू आर अ स्मार्ट गाय, सो यू अंडरस्टैंड इट, आई होप एवरीबॉडी डज. तो ये बहुत पहले से लोगों के दिमाग में अंदेशा था कि इसका ये असर होने वाला है फाइनेंस की फील्ड पे भी. तो फाइनेंस में तो सबसे जल्दी असर होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज मेनी ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स आर एक्चुअली कैलकुलेशन बेस्ड, है ना. और उसमें जो अजम्पशंस और जो चीजें थी जो वर्ड में आदमी लिखता था, अब वो मशीन भी अगर समझ सकती है, बिल्कुल, तो द कैलकुलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एज वेल एज numbers to probably ease the job of finance and replace many finance professionals. Similarly, मैन्युफैक्चरिंग में भी आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे देशों में होती है, कॉम्प्लेक्स होती है. सपोजिंग मेरा एक प्लांट मलेशिया में है, एक प्लांट इंडिया में है, तीसरा प्लांट थाईलैंड में है, चौथा प्लांट USA में है, और मैं चाहता हूँ कि कभी एक जगह से मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ाऊं, एक जगह से कम करूं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ रॉ मटेरियल. बीच में अचानक दो देशों के बीच में ट्रेड संधि हो गई जिसकी वजह से कुछ कॉस्ट कम आ गया. तो इस तरह की भी चीजें जो ह्यूमनली बड़ी मुश्किल होती थी करनी, वो AI की मदद से बहुत आसानी से हो सकेंगी. तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन आपने एक चीज़ जो कही कि क्या कहते हैं, जॉब वाली जो आपने बात कही कि जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके आने के बाद से, जैसे जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था इंडिया में, अगर मैं हिंदुस्तान की बात कहूँ इन मिड-80s और उसके अर्ली 90s में, तो ये भी डर जताया जा रहा था कि बड़े सारे जॉब्स चले जाएंगे. जॉब गए भी, कुछ चीज़ें, कुछ जॉब्स गए भी, लेकिन उसकी क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आई. तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि AI के आने के बाद या AI के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पूरी तरीके से हो सकता है कुछ खास तरीके के जॉब्स खत्म हो जाएं, लेकिन कुछ नए तरीके के जॉब्स भी सामने आएंगे. क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? अब मैं इसमें देखिए, एक तो सबसे पहले एक इशू जिसको हम डील कर सकते हैं वो है प्रोडक्टिविटी. कि हाँ, AI की वजह से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, बिल्कुल, और उस प्रोडक्टिविटी के हाँ, ये मेरा एक्चुअली प्रोडक्टिविटी में अगला सवाल ही था कि प्रोडक्टिविटी में, हाँ, तो चलिए इसी में आ जाएगा वो. ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है. तो इसमें जो जॉब्स हैं, देखिए कोई शक नहीं कि जॉब्स जाएंगी. आई थिंक इट इज अ चेंज व्हिच इज वेटिंग टू हैपन. और जब लोग कहते हैं कि देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ आ गए. फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पहले फैक्ट्रीज का सिस्टम था, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीजें शुरू हो गई, तो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए. फिर उसके बाद बहुत सारा सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, और ये वो तो लोग सर्विसेज में आ गए. तो इसलिए इकोनॉमी हैज बीन चेंजिंग एंड more resources have been positioned by the human civilization where that productivity and that labor is needed. However,
दिस टाइम इज डिफरेंट। मतलब एक ये फ्रेज है जिसको हमेशा लोग बोलते हैं डाउट करते हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट, जो है वो फ्रेज सही नहीं होता, बट लोग कह रहे हैं एआई एक ऐसी पाथ ब्रेकिंग चीज है कि दिस टाइम रियली इज डिफरेंट। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ह्यूमन माइंड की द्वारा की गई चीजों को रिप्लेस करने वाली चीजें आए, बिकॉज अल्टीमेटली वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेंटल कैपेसिटी। लेबर तो देखिए, इफ वी लुक एट द जंगल, एवरी एनिमल आल्सो डज सम लेबर इन गैदरिंग इट्स फूड, but the concerted labor that we are able to do in an organized way, that is based upon deployment of human intelligence. और वो एक चीज है जो AI probably will keep on replacing. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा इसमें, बिल्कुल, which is about wealth creation basically. I hope I'm not exceeding the time. No, you have enough time. Don't worry. Okay. Don't worry. Okay. Yeah. तो वो एग्जांपल है about wealth creation. And we were talking about the nature of jobs and how many people will be participants in wealth creation, because basically jobs का purpose economy में हम देखें तो वो क्या है, we all become participants in wealth creation by taking up a job. Yes. There is an entrepreneur who brings in the risk capital and maybe finance capital, and then we bring in the human capital, और दोनों को मिला के फिर प्रोडक्टिविटी होती है। Yes. Now, और उसी बहाने क्या होता है कि हमको लगता है हम भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड वी आल्सो गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय वे ऑफ सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स एटसेट्रा। बिल्कुल। Now, this participation in the human economy has been undergoing a change. पहले जैसे बात हुई कि एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियलाइज, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन पिछले 25-30 साल में एक और ट्रेंड हुआ है, वो ये है कि लेसर नंबर ऑफ पीपल हैव बीन क्रिएटिंग अ लार्जर अमाउंट ऑफ वेल्थ। और एक इसका बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन था, एक आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कि 2016 में आया था। उसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि इनिशियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो जायंट्स थे, AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, और दूसरा था ईस्टमैन कोडेक को उन्होंने एग्जांपल लिया था, तीसरा उन्होंने IBM। उन्होंने कहा था इन तीन को एक बास्केट में रखा, और उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया इनको अल्फाबेट यानी गूगल और फेसबुक और एप्पल। उन्होंने कहा एक तरफ एप्पल, फेसबुक, गूगल को रखो, एक तरफ ईस्टमैन कोडेक, IBM और अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ को। AT&T। और उन्होंने कंपैरिजन जब किया तो उन्होंने कहा कि जितनी वेल्थ पुरानी वाली इन कंपनीज ने क्रिएट की थी विद 6.5 या 7 लाख लोग, उससे करीब 30% ज्यादा वेल्थ इन तीन कंपनीज ने क्रिएट की विद करीब 2.25 लाख लोग, which means कि one third of the number of people created more wealth. More wealth, yes. तो और ये एक ट्रेंड है जो कि बढ़ता जा रहा है, और AI के आने से ये ट्रेंड और बढ़ेगा, which means कि there will be lesser participants in the human economy. Okay. अब इसको एक फिलोसॉफिकल ढंग से भी हम देख सकते हैं कि मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन इस तरह से इवॉल्व हो रहा था, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा था कि उसको ह्यूमनली डील करना मुश्किल था। तो एक कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट से ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को डील कर सके, बट एट द सेम टाइम इट इज मेकिंग सो मेनी ह्यूमंस रिडंडेंट, बट वी विल टॉक अबाउट दैट प्रोबेबली लेटर। सो जॉब्स पे असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, कई व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएंगे, और लेकिन कई नए तरह के जॉब्स भी आएंगे। ये बैलेंस किस तरफ जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिकेशंस तो ये हैं कि हाँ, नंबर ऑफ जॉब्स विल डिक्रीज। नहीं, इसको अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे अभी रिसेंटली खबर आई कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हो गया है। वी हैव, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया, वी हैव बिकम 1 बिलियन 1.42 बिलियन समथिंग लाइक दैट टोटल पॉपुलेशन, हम चाइना से आगे हो गए। तो अब ये देखिए कि एक और जैसे जब अगर आप इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अर्ली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की आप बात करें, उस समय पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितने थे, अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता जाए, लेस नंबर ऑफ पीपल आर नीडेड। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, नॉट एट द इकोनॉमिक लेवल बट एट द सोशल स्ट्रक्चर पे कहीं कुछ असर पड़े, या सोशल स्ट्रेटा में कहीं कुछ असर पड़ सकता है? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? हाँ, आई वुड से देखिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी कुछ ही दिन पहले ये बात हो रही थी कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन हो गया, और तुरंत कुछ लोग कहने लगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात करते हैं, हाँ, इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा होगा, हाँ, और
साथ ही साथ लोग बात करते रहे चाइना के ग्रेइंग की, कि चाइना जो है वो वहां पे पॉपुलेशन कम हो रहा है, हाँ, और जिसकी वजह से ओल्डर लोग कम हैं। मतलब इसमें हम ये भी कहें, एक चीज थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि वी आर द यंग, लाइक आपने चाइना की ग्रोइंग की बात की, तो हम यंग फोर्स है, हमारे पास मोस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल होंगे, लेकिन जब जॉब ही नहीं होंगे तो वो यंग पीपल क्या करेंगे, तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हाँ, ये प्रॉब्लम तो देखिए लग रही है, और इस बात की आशंका है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को किसी भी मीनिंगफुल एक्टिविटी में एब्जॉर्ब करना संभव आसानी से तो नहीं दिख रहा है। अब आप ये बिल्कुल। देखिए, छोटे जैसे पहले लोग सोचते थे कि ठीक है, रूरल एरिया से कोई आदमी चला है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसी अमीर के घर में ड्राइवर बन जाएगा, बिल्कुल। या उबर और ओला की टैक्सी चलाने हाँ। लगेगा आजकल के हिसाब से। अब अगर ऑटोनमस ड्राइविंग, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, अगर वो आ जाएगी, जिसमें लोग ये कहने की फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो ये है कि आपने ऐप दबाया अपने स्मार्टफोन पे, और वो जहाँ पे गाड़ियां पार्क्ड है, वो अपने आप ही वो सीक्वेंसिंग के हिसाब से जो पहली गाड़ी है उसके उस पे दब गया, और उसके बाद वो गाड़ी अपने आप आपके पास आ गई, आप गाड़ी में बैठ गए, डेस्टिनेशन आपने डाला हुआ है, अभी नहीं हाँ। है ये, है ना? बट हाँ। इट इज नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल। जिस तरह से ऑटोनोमस ड्राइविंग जा रही है, तो उस तरह की जॉब ही खत्म हो जाए। नहीं, जो ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट आया वो यही तो है। हाँ, एग्जैक्टली, रिमूव वही। द ह्यूमन हाँ, इफेक्टिव। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मुझे, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन आप पूछें तो मुझे तो इस ये थोड़ी सी डरावनी परिस्थिति दिखती है कि इतने पॉपुलेशन का हम क्या करेंगे। एग्रीकल्चर में हम डाल नहीं सकते इतने सारे लोग को, इंडस्ट्री भी धीरे धीरे रोबोटाइज हो रही है। तो अगर आप देखें तो 3 ट्रेंड्स हैं, देखिए, ऑटोमेशन, रोबोटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस है जी। ना? और ये तीनों के तीनों ट्रेंड हर सेक्टर को जब हिट करेंगे, तो हाउ विल यू एम्प्लॉय पीपल, है ना? ये बिल्कुल। मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है। शायद ट्रांजिशन में खप जाए, अगले 10-20 साल तक ट्रांजिशन होता रहेगा, तुरंत होगा नहीं एआई बिल्कुल का बिल्कुल। ट्रांजिशन, बट हमको अपने पॉपुलेशन के इशू को डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करें ये। और एक नहीं। और इसमें हाँ। डायमेंशन है, सॉरी अगर मैं आपको रोका हाँ, हूँ, नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताइए। वो डायमेंशन ये है, और शायद मेरे दिमाग का फितूर भी हो सकता है। वो ये है कि देखिए, अर्थशास्त्री पहले जब इकोनॉमिक्स की बात करते थे, तो वो ये कहते थे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और उस वक्त उन्होंने इकोलॉजी को अकाउंट फॉर नहीं किया था, हाँ। क्योंकि बढ़ने पॉपुलेशन का मतलब सबको स्टील की जरूरत है, सबको पावर की जरूरत है, सबको घर में फ्रिज की जरूरत है। इतनी चीजें अगर बन जाएंगी दुनिया में, हर आदमी को सब कुछ मिलने लगेगा, तो एनवायरमेंट इटसेल्फ विल कोलैप्स। हाँ। सो द इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट अंडरस्टूड। और अभी भी मेरे ख्याल से ये जो डेमोग्राफर्स हैं जो कह रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, वो ये एआई वाली लिमिटेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन को। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेक मोर एंड मोर पीपल रिडंडेंट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। ओके। अच्छा, हम वापस लौटते हैं आपके, क्या कहते हैं, जो आपने ट्रेड, फिनांस और मैन्युफैक्चरिंग की बात की, एआई के इम्पैक्ट की। क्या ये जो इम्पैक्ट होगा, ये इम्पैक्ट जो इकोनॉमी है, किसी कंट्री की इकोनॉमी है, उसको कितना फ़ायदा पहुंचाने वाली स्थिति में होगा? क्योंकि एक वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, हम नंबर ऑफ पीपल की बात करें, और दूसरी तरफ हम इसके लेवल पे वेल्थ क्रिएशन की जो आपने बात की, जो हिंदुस्तान इस समय टारगेट कर रहा है कि वी आर नंबर 5 इन वर्ल्ड इकॉनमी, उसमें ऑर्डर में, तो हम नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2 बनने की कोशिश में, या उस तरफ बढ़ने की कोशिश में। तो अगर स्पेशली इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जाएगा? क्योंकि हम एक तरफ पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स की बात है, और दूसरी तरफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इसके बेसिस पे क्रिएट या रिडंडेंट होने वाले जॉब्स की बात है। हाँ, मुझे लगता है कि पॉपुलेशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये तो नहीं होगा। हमारी जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी, वो हमारे इनोवेशन से आ पाएगी, और बिल्कुल। उसमें भी कम से कम, मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स कम होंगे। तो कोई तरीका सरकार को शायद ऐसा इजाद करना पड़ेगा, सोशल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो, पर हाँ। जिससे कि भाई ठीक है, दोज हु आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, उनसे किसी तरह से सरप्लस लेके आप दूसरों को बांटे, ताकि बाकी लोग भी शांत रहें। दैट इज हाँ। वन सोशल डिमेंशन। बट हाउ विल इंडिया राइज एंड what will it gain out of the present situation? Population is definitely not going to be a factor in economic growth. I think that this is probably very clear. What is going to be a factor in economic growth is being a part of cutting edge innovation and understanding the trends innovation and using them before others can. ओके। क्योंकि
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की भी शिफ्टिंग की बात करें, देखिए चाइना वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुआ जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। नाउ मच ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज शिफ्टिंग बैक टू द एडवांस्ड कंट्रीज, है ना, दे आर ट्राइंग टू कॉन्शियसली शिफ्ट इट बैक। और दूसरा एक ही चीज है, एआई और रोबोटाइजेशन क्या है, उसमें ये है ना कि ठीक है आप लेबर कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट कम कर देंगे, तो देन व्हाई वुड a developed country need to shift its processes outside? हाँ, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, जरूरत ही नहीं होगी। तो बिल्कुल, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो पुअर कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स बन रहे थे बाय शेयरिंग द वेल्थ एंड शेयरिंग द बर्डन ऑफ इकोनॉमी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो खुद भी ऐसा जो इनोवेशन जो लाए। वो जो चीप लेबर के तौर पे जो कंट्रीब्यूशन था उनका। जी, जी, तो वो जी, तो पॉपुलेशन आई थिंक विल गो इंक्रीजिंगली आउट ऑफ द इक्वेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके। इनोवेशन इज द की। तो अच्छा, अब ये जो है कि जो एआई के थ्रू जो आपने ट्रेड फिनांस में, फिर उसी पर आ रहा हूँ एक चीज़, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या जो अभी गड़बड़ियाँ होती, गवर्नमेंट के लेवल पे गड़बड़ियाँ नहीं, मतलब जो गड़बड़ियाँ होती हैं, क्या उनके जो लूप होल्स हैं क्या उनको प्लग इन किया जा सकेगा और गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर सकती कि एआई के ज़रिए हम ज़्यादा चीज़ें बेहतर कर सकें और ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा हासिल हो सके गवर्नमेंट को, क्या ये पॉसिबिलिटी है? दिस इज अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स हाँ, हम सब फाइल करते हैं, बिल्कुल, और द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स व्हिच आर स्क्रूटिनाइज्ड इज अ स्मॉल फ्रैक्शन। यस, अगर 100 रिटर्न फाइल होती हैं तो 5% या 10%, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन जिसको यस, स्क्रूटनी कर पाते हैं ह्यूमनली वो। बाकियों की ऑटोमेटेड स्क्रूटनी होती, दैट स्क्रूटनी विल बिकम बेटर विद द यूज ऑफ एआई। ओके, सिमिलरली तो इनकम टैक्स तो चलिए साल के अंत वाला टैक्स है। उस दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं जिनको ट्रांजैक्शन टैक्सेस बोलते हैं, जिसमें वीएटी आता है और कस्टम्स आता है, सॉरी जीएसटी, आज जीएसटी, जीएसटी और हाँ, जीएसटी, कस्टम्स आता है। हाँ, हाँ, तो ये हर ट्रांजैक्शन पे लेवी होते हैं। इनकम टैक्स तो चलिए हमारा साल के अंत में अकाउंटिंग होती है। अब इस तरह के टैक्सेस में, क्योंकि ये बड़े डायनेमिक होते हैं, है ना, जैसे हमारा एक महीने सेल हुई दूसरे महीने नहीं हुई तो व्हाई शुड आई अननेसेसरली पे, बट एट द सेम टाइम ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि एक महीने 1 करोड़ टैक्स दिया मैंने, दूसरे महीने 20 लाख दिया, तो हो सकता है मैंने टैक्स की चोरी की हो। हाँ, अब इस तरह के हर सिनेरियो को एक ह्यूमनली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। एआई के थ्रू मेरे ख्याल से शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है इस फील्ड में, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी हम डील नहीं कर सकते एआई कैन डील इट बेटर। फाइनली ह्यूमन इंटरवेंशन उसके बाद भी आएगा, क्योंकि एआई ने इंडिकेट किया कि हाँ ठीक है ये आदमी वेट कर रहा है, पॉसिबिलिटी है, दैट डज नॉट मीन इट इज अ डेफिनेटिव पॉसिबिलिटी। अंत ओके, में तो आपको उसको लॉ के हिसाब से प्रूव करना पड़ेगा। योर ह्यूमन एजेंट्स विल हैव टू गो एंड इन्वेस्टिगेट एंड देन मेक अ केस, यस, but they will have a lot of backup material, they will have a lot of things to support them for doing those tasks which they did not have earlier. सो अच्छा, एक चीज़ और है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक चीज़ सामने उभर के आई, स्पेशली राइटिंग और क्रिएटिविटी के लेवल पे, उसमें ये कहा जा रहा है कि इट इज़, क्रिएटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है, जो डेटा भरा गया है, जो उसके दिमाग में डेटा भरा गया है, वो उसी हिसाब से उससे जो भी अपना निष्कर्ष जिसे कहता है निकालेगा, वो उस डेटा के हिसाब से है। तो क्या आपको लगता है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी या ह्यूमन माइंड का जो है वो वर्चस्व भी बना रहेगा, या ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो एआई जो है, वो ह्यूमन माइंड पे ही हावी हो जाए? हाँ, इसके दो पार्ट्स हैं। मतलब एक तो सबसे पहला ये कि क्रिएटिविटी का कोई स्कोप है भी कि नहीं हाँ, ह्यूमंस का, अगर नंबर वन, और यू कैन से पार्ट बी ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज एआई इटसेल्फ क्रिएटिव? हाँ, बिकॉज हाँ, एआई के पास तो जो चीज है उसी जो, के वेरियस हाँ, हाँ, कॉन्फ़िगरेशंस यस, आपको दे रहा है ना? बिल्कुल, अब इस पे भी बड़ी इन्वॉल्व डिबेट चल रही है। मतलब सच्चाई है कि ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। इसमें आप अगर देखें तो नोम चॉम्स्की करके एक बड़े फेमस लिंग्विस्ट है, हाँ, बिल्कुल, उन्होंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा। फिर एआई के कई एक्सपर्ट्स हैं, और सम ऑफ देम आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स whom I really I would say I admire for their contribution. उन लोग ने इस चीज को काफी डाउट किया कि नहीं, नोम चॉम्स्की ने जो बात कही है, he has not understood what artificial intelligence is about. फिर उसके बाद और भी कुछ थिंकर्स ने भी इस पे बोला। रिसेंटली आई बिलीव इंडिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला है, इंडस्ट्रियलिस्ट के आईटी के जो बहुत एक्सपर्ट है, बड़े हाँ, हाँ एक्सपर्ट है, मिस्टर नारायण मूर्ति। तो अब ऐसी स्थिति में ये देखिए, मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कितना क्रिएटिव है एआई, क्योंकि ये बात तो सच है कि उसमें जो डेटा दिया गया है उसी के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह को वो इस्तेमाल करता है। लेकिन वही, एट द सेम टाइम जो बेसिक टेक्नोलॉजी है एआई की,
है ना, जो जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क्स और ये सब बोलते हैं, उसकी कुछ चीजें हैं जो अभी तक पूरी तरह से लोगों को समझ में नहीं आई, इवन एक्सपर्ट्स को भी, कि वो पूरी तरह से एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो अब उनका ये कहना है कि अगर आप ये मानते हैं कि एआई क्रिएटिव है, तो आपको शायद ये भी मानना पड़ेगा ह्यूमंस भी मैकेनिकल हैं। हाँ, तो दीज आर ऑल बिल्कुल। दीज आर ऑल फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स, कि हाँ, मतलब वो हमारी क्रिएटिविटी क्या कुछ बहुत सारे मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस से आती है, विच आर ऑल बेसिकली गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। हाँ, और if they are all governed by laws of physics, then maybe you can create it in a mechanical environment. हाँ, Or is our consciousness also something which is deeper than the chemistry and physics of the human body? अब ये तो philosophical सवाल है, तो हाँ, इसका जवाब मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। हाँ। और एक चीज है इमोशन। इमोशन को क्या कहेंगे? मुझे पता है आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इस नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूंकि यू हैव वर्कड सो लॉन्ग इन दिस फील्ड, यू हैव वर्कड विद आर्टिफिशियल, आपने काम किया, इस वजह से मैं एक छोटा सा सवाल पूछा हूँ कि इमोशंस को कैसे लाएंगे? अब देखिए, ये बात भी सही है कि देखिए, इमोशन ऑब्वियसली एआई में इमोशन तो है नहीं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। लोग, दूसरी एक और चीज है कि आप देखें जिस तरह से एआई नॉलेज एक्वायर करता है और जिस तरह से हम ह्यूमंस नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये दोनों हाँ, अलग अलग। हमने हाँ, पूरी जिंदगी में दूसरों से सुना, जो कि कान से सुना, आंखों से देखा, तो टच, टेस्ट, हाँ, हियरिंग एंड हाँ, विजुअल, इन सारे सेंसेस को यूज करके हमने नॉलेज को एकत्रित किया। बिल्कुल। और हमारे पास उतना बड़ा डेटा बैंक भी नहीं होता है जितना एआई के पास होता है ना, हाँ, उसके पास तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ हाँ, पेजेस होते हैं। हाँ, और एआई ने इस तरह से नॉलेज एकत्रित नहीं की। तो डेफिनेटली जिस तरह का नॉलेज उसमें गया है और जिस तरह का नॉलेज हम ह्यूमंस के पास है, उसमें कुछ तो फर्क होगा। अब वो क्या फर्क है वो धीरे धीरे पता चलेगा। ये बट यू आर राइट, इमोशन वाला एस्पेक्ट नहीं है। और कुछ लोगों ने रिसेंटली बड़े ह्यूमरस इंस्टेंसेस भी निकाले थे कि किस तरह से एआई को थोड़ा बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि लोग उसको बेवकूफ बनाएंगे, है ना। और हम हाँ, ह्यूमन सबसे पहले मानते हैं कि सामने वाला बेवकूफ ही बनाएगा हमें। हाँ, तो बिल्कुल। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, और अगर हाँ, हिंदुस्तान में देखें तो वो इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मैं इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जब चैट जीपीटी हम लोगों ने नवंबर दिसंबर में जब शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, देखना, उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो हम लोगों ने ऐसे ही एक किसी अखबार के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली कि पूछा कि भाई ये अखबार है, इसके मालिकान है, अब इनका आप पूरा डिटेल बताइए क्या है क्या नहीं है। अब उस एआई के थ्रू जो चैट जीपीटी पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसने एक पूरी कहानी बना दी कि दो भाई हैं, ये बिजनेस है, अलग हो रहे हैं, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली, उसके बाद बिल्कुल अलग कहानी बना दी। तो हमको ये भी लगा कि जो आदमी इसको इस्तेमाल करने जा रहा है एज अ पर्सन, इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ एआई, उसका जो भी टूल हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमको जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट अगर वो इन्फॉर्मेशन दे, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई कि हाँ भाई ये जो चैट चैट जीपीटी या जिसने भी उसके जिस भी टूल ने ये इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, कितनी सही है, उसको एक बार चेक कर। उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम भी वो जाने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको भी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी हमको भी होनी चाहिए। खैर ये तो ये बात हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड की आपने बात की थी, जो पहले सवाल और दूसरे सवाल के जवाब में आपने कहा था, वर्ल्ड ट्रेड बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं जब इस तरीके, तो क्या इकोनॉमीज़ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, वेदर इट विल बी बेनिफिशियल और क्या कहते हैं कुछ नुकसान भी हो सकता है, और किस तरीके की इकॉनमी, किस तरीके की इकॉनमीज़ को ज़्यादा जैसे यूएस इकॉनमी लीजिए, वेरी टेक्निकल, इंडियन इकॉनमी लीजिए, वेरी ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड, तो किस तरीके की इकॉनमी को ज़्यादा नुकसान होगा या फर्क असर पड़ेगा? नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, असर पड़ेगा, इम्पैक्ट। मेरे ख्याल से इसमें जिन इकोनॉमीज के पास अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पावर है, कि मतलब उन्हें पता है कि भाई उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग खरीदेंगे ही, चाहे अगर वो थोड़ा सा दाम बढ़ा सके। एक तो ये, दूसरा, जो इकोनॉमीज इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना जानती है, जिसकी वजह से दे कैन प्रोबेबली कंट्रोल देयर प्राइसिंग पावर, ओके, दोज इकोनॉमीज विल बी द गेनर्स। ओके, दिन विच मीन्स कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं और जिन जिन प्रोडक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो दोज काइंड ऑफ पीपल, उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे
और उनके बिजनेस भी रीजनेबली कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से वो एआई का इस्तेमाल करना चाहेंगे और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जैसे मैं किसी ऐसे देश में हूँ जिसमें टमाटर सेब और बस यही उगाता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो आई मे नॉट बी अ बिगिनर, है ना। ओके और पहले जैसे क्या होता था कि ठीक है, हमें पता चला कि एक जगह फसल खराब हो गई तो हमने अपनी फसल का दाम बढ़ा दिया, और उसकी वजह से शायद कभी कभी कुछ लोग को फायदा होता था, कुछ लोग को नुकसान होता। इस तरह की चीजें प्रोबेबली स्मूथन आउट हो जाएंगी, बिकॉज विद बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवन यूज ऑफ एआई, इस तरह के प्रिडिक्शंस हो सकेंगे कि भाई इस एरिया की फसल इस साल शायद खराब हो जाए, तो पहले से हम खरीद के रख लेते हैं, बफर स्टॉक कर लेते हैं। तो दोज हु आर डीलिंग इन, आई वुड से, प्राइमरी कमोडिटीज, they may not be the big gainers from the AI revolution. Those who are dealing with complex products and are functioning in advanced economies, they will definitely gain. ओके ओके। मिस्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शूलनी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग से बात करने के लिए। तो ये थे मिस्टर मनस्वी श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि एआई का फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान भी है। और नुकसान पे इन्होंने एक चीज़ बहुत साफ साफ कही, मैं इनकी इस बात के लिए तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने ये बताया कि कई तरह के वाइट कॉलर जॉब्स पे खतरा है। अब वो उसके आगे ऑल्टरनेटिव जॉब्स क्या डेवलप होंगे, कैसे डेवलप होंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसमें जैसे जैसे चीज़ें और डेवलप होंगी वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या डेवलप हुआ है। थैंक यू मिस्टर मनस्वी श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir, for having me. My pleasure to be here.